Hi everyone, what's up? Welcome back in another video. This is Charu Guglani, and we are finally back with this video that I've been waiting to make since a really long time. So recently I've been getting a lot of comments about how did I prepare for MHT CT and was I a JEE aspirant or a MHT CT aspirant, and many more questions like that. So I thought to address them all in this video and also give you a little sneak peek in my journey. Before I give you any tips, it's important that you all should know that how did I reach to this number 98.78. I've also asked many of my friends who got 99 plus percentiles in MHT CT about their tips and advices for fellow aspirants so that it could help someone out there, right? So watch till the end because now I'll be giving some insights from my journey from the start of this whole JEE वाला thing, and even before that how did I end up taking JEE. So कभी भी मुझे कोई बचपन में पूछता था कि what do you want to become when you grow up, so this used to be my only answer that I used to give. What do I want to become in next 5 or 10 years? Right, I really want to become a doctor, but let's hope for the best. And I was so serious about being a doctor that even in my 10th grade ka farewell I said this. And I aspire to become a doctor one day. Conduct research in the medical. 25th March 2023, my 10th boards are over and now I am in this thing कि अब मुझे आगे क्या करना है, ठीक है. Within a month I literally forgot that I wanted to become a doctor. I told my parents and my sibling that I want to become a doctor, and they told कि NEET में there is a very less probability कि you will get selected in the first year, or we don't want you to take that drop year again and again. So बहुत ऐसी advices मिली, तो मैंने भी सोचा कि डॉक्टर्स को बहुत पढ़ना पड़ता है and all. So I dropped that idea of becoming a doctor. I don't know why. I kind of regretted it later. Reason being, maths was one of the subjects which I have was one of the kids that always cried studying maths till my 10th, but ended up getting 98 in 10th standard. So yeah, I ended up taking PCM. I think so 18th April I joined in this local offline coaching in a JEE batch, of course. JEE plus MHT CT batch. एवरी मंथ हमारे संडेज़ को टेस्ट होते थे एंड द फर्स्ट 3 संडेज़ हमें हमें पूरा CET लेवल की टेस्टिंग होती थी, एंड द फोर्थ संडे यूज्ड टू बी आवर मेंस के टेस्ट. ऑल्सो अ डिस्क्लेमर, हमारी क्लासेस वाले मेंस के सारे जो PYQs थे उन्होंने उनको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में से क्लासीफाई किया था. 11th में हमको बोलते थे कि लेवल 1 ही सॉल्व करो, इसी से हो जाएगा क्लियर JEE में. वी यूज्ड टू बी लाइक हाँ लेवल 1 के क्वेश्चंस तो यू अंडरस्टैंड, यू नो, लेवल 1 टाइप्स मतलब एकदम ईजी क्वेश्चंस मेंस के, एंड हमें लेवल 1 ही बोलते थे. इनफैक्ट लेवल 2 तो शायद होता भी नहीं था, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स में डाले भी नहीं थे लेवल 2 टाइप्स क्वेश्चंस. वन में देवर क्वेश्चंस लाइक विच यू कैन सॉल्व एफर्टलेसली. So after every chapter हम DPPs करते थे. Then we used to have CET PYQs which used to be 50 or 100 around after every chapter, and उसके बाद लेवल 1 के क्वेश्चंस होते थे मेंस के. तो हम फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम 11th में हम सिर्फ लेवल 1 सॉल्व कर रहे होते थे. इसीलिए व्हेन आई रियलाइज जब हमारा पूरा पोर्शन खत्म हो गया तब जो झटके लगे हैं ना कि असली क्वेश्चंस मेंस में कैसे आ रहे हैं एंड ऑल, तब थोड़ा जाके ऐसा लगा कि ओ माय गॉड. एंड उसके बाद तो इट वाज डिफिकल्ट टू कवर अप अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो फॉर ऑल ऑफ दोस पीपल हु आर आस्किंग मी इफ आई वाज अ JEE एस्पिरेंट और CET, और अगर मैं दोनों हूँ तो मैंने कैसे मैनेज किया, दिस इज़ हाउ माई क्लासेस वर्कड. एंड ऐसा उनका पूरा सिस्टम चलता रहा अप्रैल 2023 से लेके सितंबर 2024 तक, जब तक हमारा सिलेबस नहीं खत्म हुआ था. आई थिंक सो मिड सितंबर में सिलेबस खत्म हुआ था. तो ये पूरे पीरियड ऑफ टाइम में हमारा वर्किंग ऐसा ही होता था. 12th में आके हम थोड़ा लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व करते थे. 12th में आई ऑल्सो थॉट की टू लीव दिस क्लासेस बिकॉज यू नो मेंस लेवल का नहीं पढ़ा रहे थे. फिर मेरे को एक्चुअली घर पे आकर यूट्यूब से एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता था. 7 AM टू 1 PM और 2 PM तक हमारे नॉर्मल लेक्चर्स होते थे. उसके बाद मैंने 12th में एडवांस बैच भी लिया था, तो उसके अलग 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस होते थे. उसके बाद घर आके आई यूज्ड टू वॉच यूट्यूब बिकॉज आई थॉट कि मे बी यहाँ पे नहीं अच्छा पढ़ाते तो यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाएंगे. आई रियलाइज कि इट वॉज नॉट अबाउट वॉचिंग सम अदर पीपल्स चैनल, या यू नो एक कंसेप्ट एक बार पढ़ाया गया है तो उस पर वापस उस कंसेप्ट को पढ़ने की जगह यू नीडेड टू सॉल्व क्वेश्चंस. ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, उतना ही आपको एक्सपोजर मिल रहा है, उतना ही दिमाग खुल रहा है. लेकिन आई प्रेफर्ड वॉचिंग यूट्यूब एंड आई थॉट कि शायद यूट्यूब देख के मार्क्स बढ़ जाएंगे या फिर
मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। एंटायर दिस पीरियड 1 ईयर 4 मंथ्स वाला ऐसा ही चलता रहा। 5 बजे तक घर आओ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करो, फिर वापस उठो तो यूट्यूब पे वापस वही कंसेप्ट पढ़ो। दैट वाज द वर्स्ट मिस्टेक आई फील आई हैव डन। इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाता था पूरे साल। स्पेसिफिकली मैं मैथ्स के लिए ज़्यादा देखती थी और मैंने ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए इतना नहीं देखा है एक्सेप्ट एडियोनेट। मैथ्स के लिए आई यूज्ड टू फॉलो एनवी सर ऑन यूट्यूब, निशांत वोरा सर। पुराने वाले वीडियोस देखे अन अकेडमी पे, वो उसके लाइक लिटरली आफ्टर एवरी चैप्टर मैं पैरेलली यूट्यूब पे भी देखती थी। एंड लिटरली आई हैड दैट नोटबुक जो उनके नोट्स की थी, एक पूरी प्रॉपर। यार पूरा 2024 मेरा यही रूटीन था, 2-3 बजे तक सो एंड देन वेक अप एट 6:30 7ish, गेट रेडी, गो टू क्लासेस एंड देन कम बैक एट 5 अगेन। सो वो बहुत, उसकी वजह से आई वॉज सो मेंटली ऑल्सो टायर्ड। जनवरी के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने बोला कि जेई मीन्स 2 तो फाड़ना ही है। लाइक लिटरली इवन आफ्टर जेई मीन्स 1 आई वॉज कम्प्लीटली लाइक कि मुझे जेई मीन्स ही निकालना है एनी हाउ। इवन दो दैट वॉज सच अ बैड मोमेंट फॉर मी, लाइक मीन्स 1 के बाद आई रियलाइज कि मार्क्स वार्क्स कम आ रहे। तो मीन्स 2 के बाद आई शिफ्टेड टू CET। ऑफ कोर्स मेरा 2 अप्रैल को था और 22 अप्रैल को शिफ्ट 1 वॉज माई MHT CET। 2 अप्रैल के बाद मैंने predominantly I've almost like focused on completing that extra chapters जो महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में है और जो जेई मेंस में नहीं थे, तो उन पे फोकस किया। एंड टेस्टिंग पे लाइक आई थिंक सो आई गेव अ लॉट ऑफ टेस्ट CET के, एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स एज मॉक टेस्ट दिए, उनको डबल बार लाइक लिटरली सॉल्व किया था। एंड काफ़ी PYQs भी सॉल्व हो चुके थे CET के। सो नाउ द की टेक अवेज फ्रॉम माई जर्नी एंड also the advices and tips that I've asked my friends. I realized this while editing the video कि जो लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो है उसमें आई एम लुकिंग सो डल, स्लीपी एंड मरी हुई हालत में। लाइक इट वॉज एक्चुअली प्रिटी लेट एट नाइट क्योंकि मैं रात को शूट करी थी एंड आई वॉज सो टायर्ड। तो आई थिंक सो वो वाला रहने देते क्लिप। दिस इज़ द रीशूट ऑफ दैट होल पार्ट। मैं अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करती थी, चैनल्स आई फॉलोड ड्यूरिंग माई CET prep, फॉर दोज एडवाइसेस दैट आई रियली वांटेड टू गिव यू ऑल प्रिपेयरिंग फॉर CET, उसके बारे में बात करते हैं। सो देखो, फंडा इज़ वेरी क्लियर। 200 मार्क का पेपर होता है। 50 क्वेश्चन फॉर फिजिक्स, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। सिमिलरली 50 क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। बट द ट्विस्ट इन CET इज़ कि 50 क्वेश्चन इन मैथ्स बट 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो इससे हुआ हमारा टोटल 200 मार्क का पेपर होता है। जस्ट इन केस यू ऑल डोंट नो, माई अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी वुड ऑलवेज बी CPM फॉर CET, क्योंकि आई टेल यू, जैसे ही पेपर आता था I would go to chemistry section. I would literally do all the theory based questions, जैसे organic के questions हो गए, inorganic के questions हो गए, जो मतलब one read में like which one of the following is the above reaction। तो वैसे काइंड ऑफ जो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं लिटरली 5 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन में से फटाफट उनको करके ख़त्म कर देती थी। एंड ऑलमोस्ट आई फील 20 क्वेश्चन होते ही थे थ्योरी वाले, जो लिटरली मैं 10 मिनट में कर देती थी ख़त्म। आई यूज़ टू गो टू फिजिकल केमिस्ट्री, लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में फटाफट 1 गो में कर देती थी, जो थ्योरी बेस्ड है। ऑर्गेनिक में भी देयर आर मेनी क्वेश्चंस विच आर लाइक इसका मास दे दिया, 2-3 चीज़ों का मास दे दिया, फिर कुछ कैलकुलेट करने पूछा होता है। तो वो सब मैं लास्ट के लिए रखती थी, लाइक after completing the theory part. Once I am done with my theory questions in chemistry, I would go to all the questions जिसमें मेरे को पेन चलाना होता था। तो I used to give 30 to 35 minutes for chemistry, almost कभी कभी 40 भी हो जाता। बाकी के 50 मिनट में फिजिक्स को दे देती। फिजिक्स में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई थ्योरी वाली चीज़ें नहीं है, तो मेरे को फिजिक्स में फटाफट स्पीड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता था। तो 50 मिनट्स फॉर फिजिक्स, 40 मिनट्स फॉर केमिस्ट्री एंड बाकी 1 hour 30 minutes ऑफ कोर्स दैट्स फॉर मैथ्स। अब मैथ्स में जो क्वेश्चन 1 रीड में नहीं समझ आ रहे कि कैसे स्टार्ट लेना है, उनको मैं नहीं करती थी। फटाफट आगे जाओ एंड सी ऑल द क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व लाइक ईजीली इन अ मिनट और 2। अटेम्प्ट माई पेपर कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करती थी, दैट्स हाउ आई डिड। नाउ द चैनल्स विच आई फॉलोड फॉर माई CET प्रेप, दिस इज़ आफ्टर जेई मेंस 2। अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि लोग सोचेंगे कि मैंने 2 साल प्रिपरेशन की, उसके बाद भी वाई डिड आई रिक्वायर अ चैनल टू स्टडी। द ओनली रीज़न इसके लिए मैं चैनल्स पे थोड़ा घूमती रहती थी, दैट वॉज बिकॉज अगर कोई अगर कोई ट्रिक्स वगैरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे CET में, तो इट वुड बी बेनिफिशियल, इट वुड बी हेल्पफुल। बट ऐसा नहीं हुआ, कोई भी फिज़िक्स के लिए ट्रिक्स वगैरह नहीं बता रहा था CET में, तो मैंने कोई स्पेसिफिक CET रिलेटेड चैनल मुझे नहीं मिला फिज़िक्स के लिए। वन चैनल विच आई डेफिनेटली रिकमेंड एवरीवन इज़ एड्यूनिटी। ओह माय गॉड, वो जो फॉर्मूला रिविजन प्रोवाइड करते हैं, में लिटरली सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो CET मेंस एडवांस सब में काम आते हैं। तो हिज चैनल इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेबल। एंड वन मोर टीचर दैट आई फील लाइक इनको आई कैन नॉट मिस आउट
इज़ सलीम सर फ्रॉम फिज़िक्स वाला। आई फील जब मेरे क्लासेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लाइक समझ आ भी रहा था तो भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते थे। ही वॉज द सेवियर। वंस माई फुल सिलेबस वॉज कम्प्लीटेड क्लासेस में, मैंने एक 9-10 घंटे का उनका एक वन शॉट देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसके बाद आई फेल इन लव विद दैट चैप्टर। इट वॉज़ लाइक माई फेवरेट चैप्टर अमंग ऑल फिज़िक्स के चैप्टर्स। वो बहुत ही अच्छा फिज़िक्स पढ़ाते हैं। आई फील अगर आपको कभी ऐसे कोई चैप्टर्स में डिफिकल्टी फेस होती है तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट हिज वीडियोज़। Now, so for chemistry, the chapters which I had left in mains, like which were not in mains and they were in CET, उनको मैंने अभिषेक सर केमिस्ट्री के चैनल से कवर अप किया। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट हिज चैनल इज़ उनके वन शॉट्स आर वेरी कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरा चैप्टर ख़त्म करा देते। तो आई फील जो मेरे चैप्टर्स रह गए थे, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी वाला एक चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और ऐसे एक दो तीन चैप्टर्स है जो मेंस में नहीं थे, तो आई हैड टू कवर अप दैम आफ्टर मेंस 2। तो उसके लिए मैंने अभिषेक सर को फॉलो किया। And now maths is drum roll. Maths में गणितंक and Dinesh sir, oh my god, प्लीज़ डू चेक आउट दिस चैनल। CET में मैथ्स को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बिकॉज वन क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, सो डेफिनेटली नाउ यू अंडरस्टैंड। इवन इफ यू सॉल्व 25 क्वेश्चंस करेक्ट, यू हैव 50 मार्क्स इन योर हैंड, एंड 50 मार्क्स इज, मेरे को CET में 68 आए थे शायद, एंड आई गॉट 98.9% आई। तो 50 मार्क्स भी उतना ही समथिंग उसके आसपास ही होना चाहिए। नाउ यू रियलाइज विथ जस्ट 50, 60, 70 मार्क्स योर स्कोर इंक्रीजेज, योर परसेंटाइल इंक्रीजेज टू एन एक्सटेंट दैट आई कैन नॉट इवन टेल। आई लिटरली थैंक माई सेल्फ कि मैंने मैथ्स को थोड़ा सीरियसली लिया CET में। तो गणितंक पे इतनी सारी ट्रिक्स एंड टिप्स है। ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर में यू रिक्वायर ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चन। सर्कल जैसा चैप्टर है उसमें भी कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। जो लंबे लंबे पेज के क्वेश्चन होते हैं उनको लिटरली विद इन सेकेंड्स एंड मिनट्स यू कैन सॉल्व ओनली बाई नोइंग फ्यू ट्रिक्स। तो डेफिनेटली रिकमेंडेड। एंड फ्यू चैप्टर्स जैसे मैथ्स में मेरे कच्चे पक्के थे, उनको मैंने दिनेश सर के चैनल से थोड़े स्ट्रॉन्ग कर लिया था। ही हेल्प मी इन माई बोर्ड्स ऑल्सो एंड CET में भी। तो फिर Now, I want you all to know there will be instances when you will be really clear with the concept part, the theory part, the formula part, and then when you go on to solve questions solve नहीं होते हैं। तो ये स्टूपिडिटी मत करना कि वापस थ्योरी पढ़ने लग गए, वापस एक ही चीज़ को पढ़ते जा रहे हो एंड देन गोइंग बैक टू क्वेश्चंस। इस चीज़ में आई फील लाइक इफ़ यू आर सॉल्विंग PYQs एंड आपसे PYQ सॉल्व नहीं हो रहे, डोंट स्टार्ट वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़ जहाँ पे पूरा थ्योरी ज़ीरो से पढ़ा रहे, थिंकिंग कि शायद यहाँ पे कुछ अलग पढ़ा देंगे। एक बार आपने जो पढ़ लिया है थ्योरी महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक के अंदर जितना है उतना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, देन यू डोंट हैव टू वॉच द थ्योरी लेक्चर्स अगेन। यू नीड टू गो टू अ टीचर जो PYQ सॉल्व करा रहे हैं, उनको देखो कि वो कैसा अप्रोच, द मेन पार्ट इज अप्रोच बिल्डिंग एंड हाउ टू टैकल दैट क्वेश्चन, कि मतलब क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं एंड हमें ढूंढना क्या है, उस चीज़ पे फोकस करना है। एंड कभी कभी CET के जब PYQ सॉल्व नहीं होते थे तो आई वुड सी कि हाउ टीचर्स, यूट्यूब पे भी अगर मैं जा रही हूँ तो मैं देखूंगी कि टीचर्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या अप्रोच लगा रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन पढ़ के क्या सोचा ऐसा कि ये फॉर्मूला उनको याद आया। तो थिंक इन अ स्टेप वाइज मैनर, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होनी चाहिए वाइल यूर सॉल्विंग क्वेश्चंस। किस किस चीज़ों पे फोकस करना है, इस चीज़ पे ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंडली, मैथ्स इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट अमंग ऑल द 3। जब भी आप मैथ्स के PYQ सॉल्व करने बैठ रहे हो, मेक श्योर कि आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 1 hour 20 minutes का टाइमर लगाओ। अगर आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 50 minutes का टाइमर लगाओ। ऐसे टाइम बेस्ड सॉल्विंग करना, इस चीज़ पे हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते थे एंड इवन माई फ्रेंड्स टोल्ड कि टाइम बेस्ड सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स एंड मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना प्लीज़। नाउ थर्ड थिंग इज CET के PYQs इतने ज़्यादा रिपीट होते हैं। केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करी थी, आई वाज लाइक कितनी बार ये क्वेश्चंस पूछ चुके हैं ये लोग, वापस वही क्वेश्चंस रिपीट किए। तो इट इज़ लाइक प्लस पॉइंट 21 से लेके अगर 2024 तक के भी आपने PYQs 2 बार सॉल्व कर लिए मैथ्स के या तीनों सब्जेक्ट के भी, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 80% और 90% ऑफ द क्राउड। काफ़ी सुनने मिला है कि जो भी 12th में गए हैं उनसे उनके कॉलेज के असाइनमेंट्स, फिर बोर्ड्स की पढ़ाई, CET की पढ़ाई मैनेज नहीं हो रही। दिस इज़ माई एडवाइस दैट आई फील आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी चैप्टर, प्लीज़ एटलीस्ट 2 साल के PYQs सॉल्व कर लो। तो या प्लीज़ डू फोकस ऑन CET PYQs। 2021 से लेके एटलीस्ट 2024 तक के कर लो। 2025 के यू कैन डू आफ्टर योर बोर्ड्स के बाद विल हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट, सो आई फील यू शुड डेफिनेटली जस्ट फोकस ऑन मॉक टेस्ट एंड इफ थोड़े बहुत PYQs जो रह गए बस
इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना, और अगर कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट या कोई चैप्टर रह गया है तो बस वही करना है. एंड ऑल्सो फ्यू PYPs like previous year papers as mocks, very helpful. I did that after my mains too. Majority of my friends told कि time based solving and time management is the key to achieving good percentile in CET. तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अकॉर्डिंगली, आपको फिजिक्स ज़्यादा अच्छा लगता है तो फिजिक्स को कम टाइम देके ख़त्म करके केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दो. अगर केमिस्ट्री ईजी लगता है तो फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दो. ऐसे यू हैव टू मैनेज टाइम. These were all the things that I wanted to tell you from my side, and that was it with the video. If you still have any doubts left, I'm always ready to help. You can put down your doubts in the comment section. I am here to reply all of your doubts. See ya in the next video. And अगर आप कॉलेज का पूछ रहे हो तो मैंने अब तक कॉलेज डिसाइड नहीं किया है. I'm very confused to be honest. I'm actually still figuring out. तो मैंने भी कुछ डिसाइड नहीं किया as such. See ya in the next one.